Basically, there is two terminology: organization and architecture. These are the two terminology we have to discuss. Architecture. So, anyone have any idea about these two concepts? What is the basic difference between organization and architecture? Because we have to discuss the microprocessor of Intel 8086. So Intel 8086 is the name of the model of that microprocessor, जो later on known as i3, i5, i7, i3, i5, i7 or Intel generated any microprocessor is originated from that Intel 8086. Intel 8086 is your. Now rest of the student mute yourself because some noise are there. And whenever you have any question, you just unmute yourself and raise the question. ठीक है ना? तो ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, व्हेन जब हम लोग आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो वी थिंक अबाउट द माइक्रो प्रोसेसर, एंड देयर इज ए वेरिएशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इन दिस पर्टिकुलर आईटी फील्ड. That means company to company also there is variation of microprocessor, or in the same company also there is variation of microprocessor, and in the same model also there is variation in microprocessor. Because जब आप बात करते हैं second generation, third generation, fourth generation, 10th generation, 11th generation of the same microprocessor, that means i3 का 10th या 11th generation चल रहा है, इसका मतलब है there is some modification in the previous model. तो मॉडल में एक पर्टिकुलर मॉडल में भी वेरिएशन आपका जो है मॉडिफिकेशन चलते रहता है टू इनहांस द फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर. तो आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन से सपोज इसको समझना है अगर, तो अगर आप अपने घर को देखते हैं, योर हाउस इज व्हाट, योर हाउस नेम इज देयर, नंबर इज देयर, तो योर हाउस इज नोन एज दैट नंबर एंड नेम. तो आपका जो घर है वो एक नाम से जाना जाता है. But inside the house there is various room, and each room has their different size. अलग अलग साइज का रूम होगा आपका, तो हर रूम का साइज लेंथ सब डिफरेंट होगा. ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि इनसाइड द रूम, इनसाइड द हाउस देयर आर सेवरल आर्किटेक्चर. ठीक है ना? तो माइक्रो प्रोसेसर ऑल्सो होल्ड सेवरल आर्किटेक्चर. दैट मीन्स इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर देयर इज सम रजिस्टर्स, देयर इज सम CU, control unit, ALU, various segments are there, components are there for different region, अलग अलग पर्पस के लिए. जैसे आपके घर में अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग सेगमेंट है, बेडरूम है, किचन है, ठीक है ना, वॉशरूम है, अलग अलग सेगमेंट है. तो अलग अलग सेगमेंट का इंपॉर्टेंस स्पेसिफिक है, कोई डिफरेंट नहीं, आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन इज द नेम ऑफ बॉडी. लाइक व्हेन वी से CPU, तो CPU इज द ऑर्गेनाइजेशन नेम, बट एक्चुअली CPU इज नॉट ओरिजिनल कंपोनेंट. कंपोनेंट आपका जो काम कर रहा है कंप्यूटर में वो CPU नहीं है, वो कौन है? तो उसका कंपोनेंट. उसका कंपोनेंट क्या है? तो उसका कंट्रोल यूनिट, उसका ALU जो कैलकुलेशन पार्ट को देखता है, उसमें जो रजिस्टर्स है जो आपका ड्यूरिंग ऑपरेशन जो है वो डेटा या इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है. तो व्हेन वी से दैट द CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, दैट मींस एक्चुअली CPU is the brain of computer, but actually which part of the CPU is the brain of computer? The control unit part of the CPU is the brain of computer. So actual operation is accomplished by the CU, control unit, लेकिन we just give the name of that organization or the body as a CPU. So हम लोग initially when we discuss the architecture, before discussion of the microprocessor, we discuss about the CPU and its component, because हर microprocessor में वो सारे component तो होंगे, क्योंकि microprocessor is the actual component which works एज ए CPU के जैसा जो काम करता है. तो CPU की जब बात आएगी, तो CPU की बात आएगी तो वहां पर हम Intel i3, i4, i5, i7, i9 ये डिफरेंट मॉडल नेम जानते हैं Intel, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही केवल माइक्रो प्रोसेसर है. These are the name or model generated by the Intel company, but there is some other company also which initiate or originate or develop the microprocessor, like AMD, Motorola. So these are also company which generated the particular microprocessor, and that microprocessor is also circulated in the market. But Intel generated microprocessor का हम population ज्यादा है, ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, just like a Windows operating system. ठीक है ना? There is several operating system, client operating system in the market, but you are knowing about Windows operating system. Why? Because the population
ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज हाई। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपका विंडोज ऑपरेटिंग, पॉपुलेशन इन द सेंस कि आपका यूजर सबसे ज्यादा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अब ये इको फ्रेंडली नहीं है, यूजर फ्रेंडली है। देयर आर सम ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज इको फ्रेंडली बट नॉट यूजर फ्रेंडली। हाँ, इको फ्रेंडली, यस। इको फ्रेंडली का मतलब जो इकोनॉमिकली आपका जो बजट में आपका आ जाए, इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली जैसे आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजोन पर अभी कोई भी ऑफर है, वही प्रोडक्ट अगर मार्केट में 15,000 में, अगर अमेजोन में 7,000 8,000 में मिल रहा है, तो वो इको फ्रेंडली आपको लगता है, यू जस्ट गो फॉर दैट प्रोडक्ट, ठीक है ना। कि वही प्रोडक्ट अगर मार्केट में जाएंगे तो आपको उतना पैसा देकर लेना पड़ेगा, तो आपको लगता है कि वो इकोनॉमिकल आपके लिए बेनिफिट, आप इकोनॉमिकली आप बेनिफिटेड हो जाएंगे उसको ऑनलाइन परचेज करके, यू जस्ट गो फॉर ऑनलाइन, ठीक है ना। देयर इज अनदर ऑप्शन ऑल्सो in offline mode also you can purchase the same product, but in offline mode you have to invest more compared to the online mode. There is some offer provided by that particular platform, or you can say by company also, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा हमारा सर्कुलेट हो इसलिए ऑफर डाल दिया गया है। तो इको फ्रेंडली और यूजर फ्रेंडली, आप बहुत बार ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं जिसका फंक्शनैलिटी आपको समझ में नहीं आता है। ये अलग बात है कि उसका फंक्शनैलिटी समझने के लिए आपको यूजर मैनुअल दिया जाता है। स्टिल आफ्टर रीडिंग एंड गो थ्रू द पर्टिकुलर यूजर मैनुअल, यू आर नॉट इन ए पोजीशन टू फाइंड आउट द और अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। तो आप सिंपली ये बोलेंगे कि देयर इज ए कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस फंक्शन, एंड फाइनली आप ये ऑब्जर्व करके बताएंगे कि दिस डिवाइस इज नॉट a simple one, this is the complex one, क्योंकि आप कुछ फंक्शन यूज नहीं कर पा रहे हैं, मैनुअल भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। अब उसके डिजाइनर और प्रोग्रामर और डेवलपर से तो आपसे बात डायरेक्ट होगी नहीं, ठीक है। आप अगर जिससे लिए वहां जाएंगे तो वो आपको सर्विस सेंटर भेज देगा, या वहां जाके समझ लीजिए, क्योंकि मैं तो इसको सेल करता हूं, मैं इसका सर्विस नहीं देखता हूं, सर्विस कोई और देखता है, सर्विस सेंटर वाले आपको बता पाएंगे। अगर सर्विस सेंटर में भी अपडेटेड नहीं होगा बंदा, सर्विस सेंटर में भी अपग्रेड नहीं किया होगा, कोई एम्प्लॉय को ट्रेनिंग नहीं दिया गया होगा, तो बोले अगर 1 महीना रुक जाइए, अब ये प्रोडक्ट जो है इसका हम लोग ट्रेनिंग नहीं लिए, तो हो सकता है कि आपको 1 महीना रुकना पड़ जाए, या सर्विस सेंटर में प्रोडक्ट को छोड़ देना पड़े, ठीक है ना, रेक्टिफाई करने के लिए। इको फ्रेंडली का मतलब है कि जो इकोनॉमिकल हो, कम बजट में आपका काम हो जाए। तो अब इकोनॉमिकल कौन होगा? एक कंसेप्ट है फॉस का, एक कंसेप्ट है लाइसेंस का, ठीक है ना। लाइसेंस का मतलब कि पेड है, और फॉस का मतलब फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो फ्री ओपन सॉफ्टवेयर लाइक योर पाइथन, पीएचपी, ठीक है ना, हाडूप, हाँ, वर्डप्रेस, ये सब जितना भी ये सब फ्री है। तो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जावा को भी अब फ्री है, जावा जेडीके आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, ओरेकल से कोलैबोरेट है फिर भी। तो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए अब लिनक्स एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स भी आपको फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यू कैन डाउनलोड लिनक्स विदाउट प्रायर गेटिंग प्रायर लाइसेंस फॉर दैट, नो नीड टू गेट अ लाइसेंस फॉर द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टिल इट इज नॉट यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली करने का मतलब यूजर कन्वीनियंस नहीं है। यूजर जैसे आप विंडोज में व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट टाइप फिलिंग इज देयर, ठीक है ना। इसलिए विंडोज को हम लोग ये भी बोलते हैं व्हाट यू सी इज what you get, WICI that means what you see is what you what you get, यानी जो आप देख रहे हैं वही आपको आप पा रहे हैं, आपको मिलेगा भी वही, ठीक है ना। तो what you see is what you get। तो आइकन बेस्ड है, पॉइंटर को वहां ले जाते हैं, इवेंट लगाते हैं, डबल क्लिक या सिंगल क्लिक, और उस इवेंट के हिसाब से आपका काम हो जाता है। डिटेल्स आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़िएगा, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप पढ़िएगा, अभी जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, 2 तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। अगर डेस्कटॉप लैपटॉप यूजर होंगे तो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज कर रहे हैं, और अगर मोबाइल आपके पास होगा, स्मार्टफोन होगा, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप यूज कर रहे हैं। दोनों ही चीज में क्या है कि आपका इंटरेक्ट, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, इट इज द इंटरमीडिएट प्रोग्राम बिटवीन द यूजर एंड द डिवाइस ऑफ द पर्टिकुलर। तो डिवाइस और को बोल सकते हैं हार्डवेयर, तो हार्डवेयर और यूजर के बीच में वो ब्रिज का काम करता है आपका,
operating system. That means there are various way to interact with that OS, because user without interacting with OS, user cannot perform anything by that device, by that operating, by that this desktop, laptop or mobile also. So there are two ways. One is the CUI mode and another one is the GUI mode. So CUI mode is the character, or you can say command user interface. That means you need command to interact with the ऑपरेटिंग सिस्टम को से कुछ भी आपको वर्कआउट कराना है या कोई भी मैसेज रिट्रीव करना है, इंफॉर्मेशन लेना है, तो हमको कमांड लिखना पड़ेगा, यानी कि यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी कमांड टू इंटरेक्ट विद द ओएस. तो दिस इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी कमांड. आपको सारे कमांड को याद रखना पड़ेगा. तो दैट इज द कमांड, यू कैन से कमांड यूजर इंटरफेस और यू कैन से कैरेक्टर यूजर इंटरफेस. बोथ आर सेम. कैरेक्टर बोलिए या कमांड, क्योंकि कैरेक्टर कमांड लिखेंगे तो कैरेक्टर टाइप करना ही पड़ेगा. और GUI इज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. आप अगर मैथमेटिकली इसको देखना चाहेंगे तो GUI को आप बोल सकते हैं GUI इज द सुपरसेट एंड CUI इज द सबसेट. Because if you have GUI based operating system, then CUI is automatically supported over there. That means suppose अगर हम इस कंप्यूटर की बात करें तो ये कंप्यूटर में हमने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रखा है. तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यहाँ पर हम विंडोज R प्रेस करके यहाँ पर हम CUI मोड में जा सकते हैं. CMD टाइप करेंगे. अब ये मेरा कमांड यूजर इंटरफेस आ गया. अब यहाँ पर अगर हमको डायरेक्टरी चेक करना है dir, तो डायरेक्टरी दैट इज द फोल्डर. तो अब ये dir कमांड हमको पता है तो हम फोल्डर देख पा रहे हैं. तो आप अगर GUI मोड, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उसमें CUI काम करेगा. ठीक है ना, GUI में CUI काम करेगा. बट अगर आपका CUI मोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक DOS, तो DOS है तो उसमें केवल कमांड ही इंटरेक्शन हो सकता है. तो दैट इज व्हाई there are two way to interact with the OS. One is the command based interaction and another one is the graphical representation. That means we are using pointer. तो अब पॉइंटर को यूज करना है. जैसे अभी हम लोग क्या किए कि एक DOS मिल गए. अब यहाँ पर अगर हमको कोई फोल्डर ओपन करना है तो इस फोल्डर क्लिक किए, राइट क्लिक किए, फिर यहाँ जाके ओपन करना है जो भी करना है, या डबल क्लिक किए, ये फोल्डर ओपन हो गया. ठीक है. तो यहाँ जो फोल्डर है दैट इज द डायरेक्टरी इन केस ऑफ कमांड यूजर इंटरफेस. तो व्हेनेवर यू आर मेकिंग फोल्डर, तो मेकिंग फोल्डर इज वेरी मच इजी टू यू. आप क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू पर जाते हैं, फोल्डर एक बना देते हैं. न्यू फोल्डर बन गया. अब ये न्यू फोल्डर बनाने के लिए अगर हम जाएंगे, अगर हम CMD मोड में जाएंगे तो फिर हमको न्यू फोल्डर बनाने का मतलब है कि एक डायरेक्टरी क्रिएट करना. तो अगेन यू नीड MD कमांड एंड CD कमांड, मेक डायरेक्टरी एंड चेंज डायरेक्टरी. पहले मेक डायरेक्टरी यानी डायरेक्टरी बनाएंगे. अगर उस डायरेक्टरी के अंदर आपको जाना है, कोई फाइल को रखना है, तो यू हैव टू चेंज द डायरेक्टरी फर्स्ट, देन आफ्टर यू. जैसे अभी क्या है, न्यू फोल्डर हमने बनाया, न्यू फोल्डर में कोई फाइल रखना है तो पहले हमको न्यू फोल्डर में जाना पड़ेगा. तो ये चीज तो हम डायरेक्टली कर पा रहे हैं. कैसे कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर यहाँ पर दो फैक्टर है. ये तो हो गया आपका सिस्टम कमांड्स, जो अभी हम लोग CD MD की बात कर रहे हैं. तो ये DOS कमांड्स जैसे आप बोलेंगे तो सिस्टम कमांड्स के बेसिस पर CUI काम करता है, और आपका जो GUI है वो सिस्टम कॉल्स के बेसिस पर काम करता है. सिस्टम कॉल्स यानी हर चीज के लिए सिस्टम को कॉल किया जाता है. फंक्शन, देयर इज API, थ्रू दैट API कॉलिंग द पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी इज अकम्प्लिश्ड इनसाइड द सिस्टम. तो हम लोग राइट क्लिक कर रहे हैं तो एक इवेंट प्रोड्यूस हुआ, राइट क्लिक किए तो एक पॉपअप मेनू आया, उसमें एक टैब न्यू है, न्यू में फिर फर्दर हम मूव किए तो फोल्डर एक टैब मिला, वहां पर उसको क्लिक किए, यानी कि क्लिक इज द इवेंट. राइट क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक करें, दीज आर द इवेंट. जैसे आप स्विच ऑन और ऑफ करते हैं, दैट स्विच ऑन एंड ऑफ इज द इवेंट. आफ्टर occurring that event, certain action should take place. तो action should take place on the basis of that event. स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब का होगा तो बल्ब ऑन हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो बल्ब ऑफ हो जाएगा. इसका मतलब वो एक्शन ऑन और ऑफ का, बल्ब का जो एक्शन है वो डिपेंड कर रहा है उस इवेंट पर. तो हम लोग भी यहाँ पर क्लिक इवेंट जो लगा रहे हैं, डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, तो उस क्लिक इवेंट के बेसिस पर सर्टेन एक्शन परफॉर्म हो रहा है और वो एक्शंस को हम लोग देख पा रहे हैं. तो सिस्टम कॉल्स में ये आसान है इंटरेक्ट करना OS से, और कमांड में हमको कमांड रिमेंबर करके रखना पड़ेगा. अभी क्या है, लिनक्स में कुछ इंस्टॉलेशन कमांड बेस्ड है. तो लिनक्स इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन गेट द लिनक्स ऑनलाइन मोड में क्लाइंट वर्जन.
सर्वर वर्जन के लिए यू हैव टू पे, बट अभी आप जो ओएस यूज कर रहे हैं वो क्लाइंट वर्जन यूज कर रहे हैं। हर ओएस का 2 वर्जन होता है, एक क्लाइंट बेस्ड और दूसरा सर्वर बेस्ड। तो आप अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप में क्लाइंट ओएस ही रखते होंगे। तो जो लिनक्स आपका जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फ्री ऑफ सोर्स ओपन सोर्स है, नहीं फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसमें क्या है कि इंस्टॉलेशन के लिए यू नीड टू राइट सम कमांड टू इंटरेक्ट विद द ओएस। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर कमांड आपको थोड़ा सा भी मिसिंग होगा तो वो आप प्रॉपर्ली इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो फंक्शनैलिटी को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन विंडोज में क्या है कि देयर इज बोथ ऑप्शन, ठीक है ना। कमांड के थ्रू भी आप इंटरेक्ट कर रहे हैं और जो है सिस्टम का जो है कॉल्स को भी यूज कर रहे हैं। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ेंगे तो ये 2 ही सेगमेंट आपका होगा, एक सिस्टम कमांड्स और दूसरा सिस्टम कॉल्स। दीज आर द 2 वे टू इंटरेक्ट विद द ओएस। तीसरा कुछ नहीं है। ये 2 तरीका है जिससे हम ओएस से इंटरेक्ट करते हैं। व्हाई वी इंटरेक्ट विद ओएस? बिकॉज वी वांट टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन, और यू कैन से वी वांट टू प्लेस आवर रिक्वेस्ट। बिकॉज आप जब जो भी रिक्वेस्ट दे रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपका काम हो रहा है। तो आप जो भी रिक्वेस्ट देना चाहते हैं उसको ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करके देना पड़ेगा। अब ये कम्युनिकेशन कमांड बेस्ड करेंगे या सिस्टम कॉल्स बेस्ड करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपको कौन कन्वीनियंट लगता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज जो है ये आपका पेड वर्जन है, ठीक है ना। आप कोई क्रैक वर्जन यूज करे तो इंटायर फीचर्स यूज नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर पेड वर्जन यूज करेगा और लाइसेंस्ड ओएस उसके पास होगा तो वो सारे ओएस का फीचर्स को यूटिलाइज कर पाएगा। ओएस में बहुत सारा फीचर्स है, पॉलिसी है, ग्रुप पॉलिसी है, आप अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए बहुत सारा पॉलिसी लगा सकते हैं, ठीक है ना, ताकि आपका सिस्टम सिक्योर मोड में काम करे, दूसरा कोई उसमें किसी तरह का कोई इंटरप्शन या इंटरफेरेंस नहीं कर पाए। तो आपका सिस्टम आप किसी को हैंड ओवर भी करेंगे, पॉलिसी रहेगा तो आप वो आपके सिस्टम से कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप वो पेड वर्जन नहीं यूज कर रहे हैं तो वहां पर पॉलिसी एक लिमिटेशन के साथ ही लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो पॉलिसी लिमिटेशंस इज देयर इफ यू डू नॉट हैव अ लाइसेंस्ड वर्जन ऑफ ओएस। तो इको फ्रेंडली इसलिए है क्योंकि अगर आप लाइसेंस्ड वन लेंगे तो यू हैव टू पे मच, ज्यादा पैसा लगेगा। तो इको फ्रेंडली आपका नहीं है विंडोज, ठीक है ना। इको फ्रेंडली वही होगा जो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है ना। तो आपका जो आधार आप यूज कर रहे हैं, आधार कंप्लीट फॉस से बना है, इसलिए गवर्नमेंट को किसी तरह का मेंटेनेंस लाइसेंस बेस पर नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है ना। इसलिए नहीं तो अगर हर साल रिन्यूअल करना पड़ता, आप सोच सकते हैं हर साल जो डेटा बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो आधार भी बढ़ेगा, उसका भी पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो आप जान जाइए कि कोई भी कंपनी जो डेटाबेस मेंटेन कर रही है, अगर वो पेड वर्जन यूज होता तो क्या होता, आपके पास 500 डेटा हैंडल हो रहा है तो उसके हिसाब से चार्जिंग होगा, और वो 5 लाख हो गया तो उसके हिसाब से 5 करोड़ हो गया तो उसके हिसाब से। तो जैसे जैसे आपका पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका फी भी बढ़ता जाएगा, तो ये ओवरबर्डन हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। तो जितने भी आपका जो आधार में जो भी आपका फंक्शनैलिटी यूज किया गया वो सब फॉस उसमें PHP यूज किया गया, पाइथन यूज किया गया, हाडूप यूज किया गया है। ये सारे फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं जिसके लिए कोई प्रायर लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी लेवल पर वर्क किया जा रहा है, बाकी आपका मेंटेनेंस जीरो है। जीरो मेंटेनेंस मतलब कि आप एक एंटीवायरस खरीदते हैं उसमें भी मेंटेनेंस होता है 6 महीना का खरीदे, 6 महीना जैसे ही खत्म हुआ आपको नोटिफिकेशन 2 दिन पहले से आने लगेगा, या तो इसको रिन्यू करिए और नहीं तो नया फिर खरीदना पड़ेगा और जिसमें आपका ये लाइसेंस का नहीं जरूरत हुआ, कोई रिन्यूअल का जरूरत नहीं है। आप लिनक्स में काम कर रहे हैं, लिनक्स अपडेट होगा, आपका भी अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ओरिजिनल वर्जन पर काम नहीं कर रहे हैं तो आपका अपडेट आप रोके रहेंगे। अभी विंडोज 10, 11 में क्या प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, आप विंडोज अपडेट रोक नहीं पाएंगे। तो विंडोज अपडेट होगा, पहले का जो भी था वो सबको स्टॉप कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ने। तो अब जो भी लेटेस्ट है 10 या 11 उसमें ऑटोमेटिक अपडेट लिया जाएगा, उसका फॉर्मवेयर जो भी है वो सारे ऑटोमेटिक होंगे, आप उसको इंटरप्ट नहीं कर सकते। अर्लियर वर्जन में आप इंटरप्ट कर लेते थे, अपडेट को ऑफ कर देते थे, ठीक है ना। हाँ ओब्वियसली है कि कोई भी चीज पायरेटेड आप यूज करेंगे तो उसमें ऑफ करेंगे, इसलिए कि आप उसको बताएंगे नहीं कि भाई हम आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है।
तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इको एंड यूजर फ्रेंडली. क्लियर हो गया होगा इको और यूजर फ्रेंडली. तो ऑर्गेनाइजेशन को हम बोल सकते हैं, बिकॉज वाई डिस्कस दिस थिंग, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इज द सीपीयू एंड आर्किटेक्चर इज द माइक्रो प्रोसेसर. So we just discussed the architecture, microprocessor on the basis of that architecture. So अब जब before discussion of architecture, you must have an idea about the organization. What is CPU and what are its component of CPU? Because this one is the generalized one. ये जो हम लोग discuss करेंगे, this one is the generalized for any microprocessor. कोई भी microprocessor. अभी क्या है, आप बोलेंगे dual core. डुअल कोर का मतलब क्या, 2 सीपीयूज आर देयर. दैट मींस एक सीपीयू का जो फीचर्स हम पढ़ रहे हैं वो 2 सीपीयू यूज हो रहा है माइक्रो प्रोसेसर में. इसका मतलब कि सेम कंपोनेंट 2 यूज किया गया पैरेलल प्रोसेसिंग करने के लिए, आपका जो स्पीड बढ़ाने के लिए. ऑक्टा कोर यानी कि 8 सीपीयूज आर देयर, ठीक है ना. क्वाड कोर 4 सीपीयूज आर देयर. दैट मींस व्हाटएवर वी डिस्कस अंडर सीपीयू एंड इट्स कंपोनेंट, जो फीचर्स और कंपोनेंट हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट फीचर्स एंड कंपोनेंट इज अवेलेबल विथ नॉट वन सीपीयू, नंबर ऑफ सीपीयू टू एक्सेलरेट और द प्रोसेस ऑफ द एक्सेशन, यानी प्रोसेसिंग को एक्सेलरेट करने के लिए, तेज करने के लिए, फ्रीक्वेंट करने के लिए नंबर ऑफ सीपीयू को कोलैबोरेट करके प्रोसेसर डिजाइन किया गया. तो अब सबसे पहले क्वेश्चन आया कि सीपीयू एक्चुअली है क्या. तो इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि ओवरऑल जो भी हमारा जो ऑपरेशन है वो क्या होता है, इनपुट, आउटपुट और एक होता है प्रोसेस. 3 ही फैक्टर आपका काम करता है. P stands for process, and process actually accomplished, processing accomplished by the processor. So your input device, variation of input device we have, but a standard input device is the keyboard. You can also use this one is also input device, ठीक है ना. Mouse is also input device, but a standard input device keyboard को रखा गया है. Similarly, in C language also, whenever you are going to include stdio.h, has include stdio.h, what is the reason behind that inclusion? Just for using a standard input output device, because whenever you are going to take input you have to use keyboard, and whenever you want to see the output you have to use monitor. So monitor as a standard output device and keyboard as a standard input device. तो आपका जो printer है वो भी output device है, but that output device is used to take a hard copy of the soft one. तो जो सॉफ्ट कॉपी है, जिस प्रोग्राम को आप रन कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि हर का आप प्रिंट आउट निकालिए. तो प्रिंटर भी है, लेकिन प्रिंटर का काम केवल प्रिंट निकालने के लिए है. तो प्रिंटर का जरूरत अब क्या है कि आप डेस्कटॉप लैपटॉप परचेज करेंगे तो इनिशियली देयर नो नीड टू परचेज प्रिंटर, बट आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल, आफ्टर यूजिंग ऑफ दैट डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, यू नीड टू प्रिंट समथिंग. तो अब छोटा मोटा काम प्रिंटिंग है तो आप बाहर जाके कहीं से पेन ड्राइव में ले लगते हैं, लेकिन अगर मास प्रिंटिंग आपको करना है, देन आफ्टर यू नीड अ प्रिंटर. अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ये टेम्पोररी यानी कि परमानेंट ये डिवाइस अवेलेबल होगा तभी हमारा सिस्टम काम करेगा. मॉनिटर नहीं होगा तो काम रुक सकता है, कीबोर्ड नहीं होगा काम रुक सकता है, प्रिंटर नहीं होगा काम नहीं रुकेगा. इवन आप अगर ऐसा सोचें कि ये जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस की हम बात कर रहे हैं, these are the devices which is used for user convenience. अगर आप मॉनिटर नहीं यूज करेंगे, कीबोर्ड नहीं यूज करेंगे, सिस्टम ऑन कर दीजिए, स्टिल योर सिस्टम इज ऑन. बट क्या दिक्कत है सिस्टम ऑन होने के बाद? वी आर नॉट गोइंग टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम. दैट्स व्हाई वी नीड कीबोर्ड, वी नीड मॉनिटर. मॉनिटर से हम ये लुक एंड फील हमारे पास आ जाता है कि हाँ सिस्टम ऑन हो गया, डेस्कटॉप हमारा ओपन हो गया. मोबाइल का डिस्प्ले हटा दीजिए, मोबाइल ऑन होगा लेकिन आपको कुछ पता नहीं चलेगा. तो यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज दैट डिवाइस इज ऑन or off, but whenever that display is there you can easily recognize that device is on and device is off. तो just for user convenience, यूजर के सुविधा के लिए ये सारे पेरिफेरल्स को जोड़ा जाता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बिकॉज यूजर इंटरेक्शन प्रॉपर्ली होगा. अगर डेस्कटॉप से आप कोई सिस्टम कॉल्स करना चाहेंगे तो डेस्कटॉप पहले विजन होना चाहिए, डेस्कटॉप दिखेगा, उस पर आइकन दिखेगा, तभी आप उसमें कोई आइकन पर कोई इवेंट लगा सकते हैं, क्लिक इवेंट या डबल क्लिक इवेंट, कोई भी इवेंट आप तब लगाएंगे जब वो विजुलाइज होगा. लेकिन अगर मॉनिटर नहीं है, डेस्कटॉप आपका मॉनिटर नहीं है, कीबोर्ड है, तो आप देख ही नहीं पाएंगे, तो फिर आप सिस्टम कॉल्स कॉल कैसे करेंगे, माउस को यूज कैसे करेंगे? तो दैट इज द रीजन. तो इनपुट, आउटपुट, and in between input output there is a process, and that process part we discuss the CPU.
जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम अभी शुरू नहीं हुआ होगा, बहुत सारा चीज अभी 1-2 दिन हुआ है, तो अभी तो शुरू होना है। तो सीपीयू का रोल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू का जो रोल है वो प्रोसेस को मैनेज करने के लिए होता है, लेकिन प्रोसेस को मैनेज अकेले सीपीयू नहीं करता है। प्रोसेस को मैनेज करने के लिए जब आप पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या ओवरऑल सुपरवाइजरी प्रोग्राम है, तो उसमें एक प्रोसेस मैनेजमेंट भी कंपोनेंट आता है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट कंपोनेंट में वेरियस स्टेट होता है, किसी भी प्रोसेस का वेरियस स्टेट होता है, जैसे आप बोलते हैं लाइफ साइकिल। तो प्रोसेस का लाइफ साइकिल क्या है, सबसे पहले न्यू स्टेट, उसके बाद रेडी स्टेट, फिर रनिंग स्टेट। क्योंकि ये आपको समझना जरूरी है कि हम लोग जो सीपीयू की बात कर रहे हैं वो इसमें से कौन सा स्टेट होगा, क्योंकि सीपीयू भी प्रोसेस को होल्ड कर रहा है प्रोसेसिंग करने के लिए। रनिंग स्टेट, sometime process move to the waiting state also, and finally there is a termination state, मतलब कि एंड होना, प्रोसेस एंड होना। जैसे अगर कोई फाइल आप ओपन करते हैं तो वो फाइल सबसे पहले कहाँ होता है, अब यहाँ पर या वहां से कॉन्सेप्ट आ जाता है सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। आपके डेस्क पर कितना कॉपी है, आपके बैग में कितना कॉपी है, आपके बैग में कितना कॉपी है? एक भी नहीं, बिना देखे, मतलब कि फाइल अभी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, उसी तरह से जैसे बैग इज योर हार्ड डिस्क एंड यू आर सेइंग दैट नो फाइल इज देयर, दैट मीन्स नो एप्लीकेशन इज इंस्टॉल्ड बाय यू। आपने बताया एक कॉपी है, अब ये एक कॉपी नो फाइल, ये जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये आप स्टेटमेंट कब दे रहे हैं, जब आपको एक सिग्नल मिलता है। मैंने एक क्वेश्चन क्वेरी जनरेट किया, आपने उसके हिसाब से रिटर्न किया जवाब, लेकिन ये जो आपके बैग में है या नहीं, ये पहले से फिच डेटा आपके दिमाग में है, आपको पता है कि आप बैग लेके आए उसमें कॉपी नहीं रखे थे, तो ये कहीं ना कहीं मेमोरी में आप रिटेन करके रखे हैं डेटा, इससे आप जवाब दे दिए। ये थोड़ी देर के लिए डेस्क देखा, डेस्क पर एक कॉपी दिखा, हो सकता है कोई और कॉपी रख दिया हो, इसलिए चेक करने की जरूरत है कि एक की जगह दो तो नहीं है। तो ये जो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये आपका रिस्पॉन्ड कौन कर रहा है? बैग आपका जो है वो तो आपसे अलग है, डिटैच है, वो सेकेंडरी मेमोरी है, वो डायरेक्ट वर्केबल मेमोरी नहीं है। लेकिन जो आपका एक्चुअल मेमोरी, दैट इज द प्राइमरी मेमोरी, ये आपको ये फेच करके डेटा तैयार कर रहा है प्रोसेसिंग के लिए। आप एक जवाब दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं नो फाइल इज देयर, नो कॉपी इज देयर, तो दीज आर द सॉल्यूशन, दीज आर द आंसर प्रोवाइडेड बाय यू ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइमरी मेमोरी। तो whatever information is available with the secondary memory, only that information is generated as a result. तो आपके बैग में कॉपी नहीं है, नो फाइल्स आर देयर, तो यू आर सेइंग नो फाइल्स आर देयर, नो कॉपी इज देयर। इसका मतलब है कि अगर कोई फाइल या कॉपी बैग में नहीं होगा तो हम चाहकर भी उसको निकाल, why I am discussing this thing, because कि if the program is not available with your system, you cannot open that program. आप प्रोग्राम ओपन तभी कर पाएंगे जब वो प्रोग्राम आपके पास होगा। जी सिंपली समझना है कि आपका जिस बैंक में खाता है उसी बैंक में डिपॉजिट और विड्रॉल का काम होगा। ऐसा नहीं है कि बैंक आप बैंक में खाता खोल लिए तो किसी बैंक में हाँ पैसा निकालने का काम आप कर रहे हैं, वो भी आप अपने ही बैंक के एटीएम कार्ड से कर रहे हैं। ये बैंक के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि वो दूसरा बैंक भी आपको पैसा दे रहा है, दैट इज द पार्ट ऑफ आरबीआई एंड द पर्टिकुलर बैंक। वो लोग उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और समझते हैं कैसे पैसा का ट्रांसफरिंग होगा। बट यू आर यूजिंग योर ओन कार्ड, यू आर यूजिंग द कार्ड ऑफ द सेम बैंक इन विच यू आर ओपनिंग द अकाउंट। दैट मीन्स अगर बैंक की भी बात करें तो वहां पर भी आपका जो बैंक है वही आपको लेन देन प्रोवाइड करेगा, यानी कि डेबिट क्रेडिट आप उसी बैंक में करेंगे। दूसरा बैंक आपको प्रिविलेज दे सकता है विड्रॉल का, डिपॉजिट का नहीं देगा कभी। डिपॉजिट का भी चेक से देगा, तो डिपॉजिट का चेक आपका डिपॉजिट उसी बैंक में होगा। मान लेते हैं आपको दूसरे बैंक का चेक मिले, तो वो चेक भी आपका उसी अकाउंट में जमा होगा जिस अकाउंट से आप जिस बैंक में आपने अकाउंट ओपन किया है। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है
कि आपका जो सेकेंडरी मेमोरी है वो प्रोग्राम को होल्ड करता है। अब यहाँ दो टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस करते हैं, एक प्रोग्राम, एक हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोग्राम जो अब ब्रिज में भी हम लोग डिस्कस किए हैं, और एक हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोसेस। तो ये प्रोग्राम आप समझ लीजिए कि जब हम लोग सीपीयू बात करेंगे तो ये प्रोग्राम से ही प्रोसेस बनाना है। तो कैसे बनाना है? अब जैसे यहाँ पर हमने वर्ड इंस्टॉल किया है, मतलब एमएस ऑफिस इंस्टॉल किया, वर्ड भी है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, लेकिन बीइंग एन यूजर हम अगर वर्ड को ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट देंगे, वर्ड ही ओपन होगा, एक्सेल को ओपन करेंगे तो एक्सेल ही ओपन होगा। इसका मतलब है जो प्रोग्राम है वो क्या है, वो स्टोर्ड है। तो कहाँ स्टोर्ड है? जहां पर परमानेंटली स्टोर करने का प्रोविजन होगा। तो परमानेंटली कहाँ स्टोर्ड होता है? तो दिस इज द परमानेंट, हाँ, परमानेंटली कोई भी चीज, और यहाँ पर टेम्पोरली, ठीक है। तो आपका जो हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, ये इसमें आप प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर करके रख देते हैं। क्यों रखते हैं? जस्ट लाइक अ बैग। आज घर से निकले, कहीं बाहर जाना है, सब जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है उसको आप ऑफ कर दीजिए। लाल बत्ती होगा, डाल दीजिए, ऑटोमेटिक, ठीक है। तो आपका जो स्टोर्ड प्रोग्राम है वो परमानेंटली कहीं ना कहीं आप रखेंगे। जैसे आप बैग में लेके चलेंगे वही बाहर निकाल पाएंगे, क्योंकि बैग में जो कॉपी रखे होंगे हो सकता है नया कॉपी हो, जब बाहर निकलेगा 2-3 पेज लिख जाएगा, तो लिख जाएगा मतलब कि अपग्रेड हो गया। वो घर से चले थे तो पेज खाली था, जब यहाँ आए तो 2-3 पेज लिख लिए, तो वो आपका अपडेट हो गया। यही काम कंप्यूटर में भी है। फाइल को ओपन करेंगे, फाइल पर लिखेंगे। आप फाइल को रीड ओनली मोड में करेंगे या राइटिंग, रीड और राइट दोनों मोड में करेंगे, पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, अपेंड भी करेंगे। तो अगर पहला कोई फाइल आपका 2 पेज होल्ड करता होगा, 1 पेज और लिख दिया तो 3 पेज का फाइल हो गया। तो आपका जो भी प्रोग्राम स्टोर्ड है उसको प्रोसेस बनना पड़ता है। इसलिए हम लोग इसको डिस्कस किए थे कि ये आपका क्या है, सेट ऑफ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। प्रोग्राम जो है सेट ऑफ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है। लाइक आप बोले एमएस ऑफिस, तो उसमें भी फाइनाइटनेस है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, जो भी है, पब्लिशर है। और प्रोसेस क्या है आपका? रनिंग प्रोग्राम, या आप इसको बोल सकते हैं प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। तो जो बैग से बाहर निकल गया, अब वो एग्जीक्यूशन फेज में आ गया, अब उस पर कुछ काम हो रहा है। जब तक बैग में है तो स्टोर्ड है। तो आपके हार्ड डिस्क में जो चीज है वो प्रोग्राम है, लेकिन जब हार्ड डिस्क से आप उसको रिट्रीव कर, क्यों रिट्रीव कर रहे हैं? क्योंकि यूजर ने रिक्वेस्ट दिया है। जो यूजर रिक्वेस्ट देगा उसके हिसाब से आपका सीपीयू का जो कंट्रोल यूनिट पार्ट है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, वो एक सिग्नल जनरेट करेगा। सिग्नल जनरेट करेगा तो उसको सिग्नल को, जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया तो आपका कंट्रोल यूनिट उस सिग्नल्स को फॉलो किया और आपके प्राइमरी मेमोरी को ये इंस्ट्रक्शंस दिया कि आप ये क्वेरी है, इस क्वेरी का जवाब खोजो। तो जो हम लोग डिस्कस किए थे, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट, ये 3 वर्ड यूज किए थे ना? नहीं ध्यान में आप लोगों? आप लोग ब्रिज में नहीं क्लास किए हैं? अच्छा। तो फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट, ये 3 वर्ड हम लोग यूज करते हैं। फेच का मतलब होता है टू सर्च, डिकोड का मतलब है टू टेक डिसीजन, एग्जीक्यूट का मतलब होता है टू फाइनलाइज द ऑब्जेक्टिव। लाइक ये चीज, ये फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, नॉट इन ए कंप्यूटर, इन डेली लाइफ ऑल्सो वी आर यूजिंग। सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटा, यानी कि सुबह 6 बजे से टोटल आपका जो अगले दिन सुबह 6 बजे तक आप जो भी काम करते हैं उसमें फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट के बिना कोई काम नहीं हो सकता। सपोज आपको अगर कोई ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, सपोज यू हैव टू परचेज पेन, तो आपको पहले तो पेन की दुकान सर्च करनी होगी। अब ऑफलाइन करिए, ऑनलाइन करिए, दोनों ऑप्शन है आपके पास। अमेजोन पर जाकर पेन खरीद लीजिए, फ्लिपकार्ट पर खरीद लीजिए, या जाकर बाहर कोई स्टेशनरी के दुकान में खरीद लीजिए। तो बाहर जाकर खरीदे ऑफलाइन होगा, और ऑनलाइन अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ले रहे हैं तो वहां पर ऑनलाइन मोड में आप सिलेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट को। तो अब यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट आपका पेन भी हो सकता है,
ऑब्जेक्ट कुछ भी आप ले लीजिए, वो सब पर अप्लीकेबल है। पेन हो सकता है, कॉपी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, एसी हो सकता है, फैन हो सकता है, एनी ऑब्जेक्ट। इफ यू वांट टू परचेज दैट ऑब्जेक्ट, then you have to search the location or place where that object is available. Now you have two options, either you search it on offline mode or you can search it in online mode. So for online mode, you just go to the particular website, business model, that means B2C website आपका मॉडल पर जो काम कर रहा होगा, बिजनेस टू कंज्यूमर, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन। यहाँ पर आप कंज्यूमर हैं, आप जाते हैं और वहां पर प्रोडक्ट देखते हैं, परचेज करते हैं। तो आप या तो ऑनलाइन में सर्च करेंगे या ऑफलाइन में। ये पहला चीज हुआ कि सर्च कहाँ करेंगे, लोकेशन प्लेस क्या होगा। दूसरा कि जब आप ऑफलाइन या ऑनलाइन तय कर लेंगे, तब आप उस लोकेशन पर जाएंगे। मान लेते हैं किसी स्टेशनरी ऑफलाइन मोड में खरीद रहे हैं, किसी दुकान पर गए, तो वहां पर वेरिएशन ऑफ पेन होगा। आप क्या सारे पेन खरीद लेंगे? नहीं, आपको कोई पर्टिकुलर पेन खरीदना है, आपको रिनाल्ड्स का पेन खरीदना है, आपको लिंक का कोई पेन खरीदना है। तो अब लिंक में भी बहुत सारा मॉडल होगा, अब उसमें से कौन सा लेना है। अब ये क्या है, दिस इज द डिसीजन मेकिंग पार्ट। अब वहां आपको डिसीजन लेना होता है। अब वो डिसीजन लेने में आपका इकोनॉमिक ये सब चीज आता है, बजट भी आता है कि आपको कितने रेंज का पेन लेना है। ये सारे चीज को कवर करके तब आप फाइनलाइज करते हैं डिसीजन। तो वंस यू फाइनलाइज द डिसीजन, देन व्हाट, नेक्स्ट पार्ट इज द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मीन्स द फाइनल आउटकम जनरेशन। आप जैसे ही ये फाइनलाइज कर लीजिएगा, ये पेन लेना है, कॉस्टिंग आपको पता चल गया, 10 रुपए का पेन है, 10 रुपया आपने पे किया, 10 रुपया पे करने के बाद पेन आपके हाथ में आ गया। इसका मतलब योर ऑब्जेक्टिव इज फुलफिल्ड। दैट मीन्स टू फुलफिलमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्टिव यू नीड टू कवर अप दिस 3 स्टेप्स, फेच, डिकोड एंड फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। ये आपको तीनों से गुजरना होगा। अब मैंने एक पेन का एग्जांपल लिया, आप आज जाइएगा घर पर नंबर ऑफ एग्जांपल लीजिएगा। यानी कि जब भी कोई काम आपको असाइन करे तो आप सोचिएगा कि अब पेज क्या हो रहा है, इसमें बोल दिया जाए आपको कि ये सामान जाके लाओ, तो आप तुरंत वहां से फेचिंग स्टार्ट होगा। ये सामान मिलेगा कहाँ, मिलेगा कहाँ, ये डेस्टिनेशन आपको सर्च करना पड़ेगा कि उस एरिया में मिलेगा, उस एरिया मिलेगा, या नियर बाई कहीं पर अवेलेबल है। तो ये सर्च का आपका इनिशिएशन शुरू हो गया। और उसके बाद फिर आप क्या होगा, जब आप उस लोकेशन में पहुंच जाइएगा तब बोलेंगे सामान तो लेना है, यहाँ पर बहुत सारा ब्रांड है, ठीक है ना। तो ये जो प्रोडक्ट है ये 4 ब्रांड में आता है, कौन सा ब्रांड का हमको लेना है, वहां डिसीजन ले रहे हैं आप। और फिर उसके बाद फिर क्वांटिटी के बारे में सोचेंगे, कितने क्वांटिटी में लेना है। अगेन यू आर टेकिंग डिसीजन, बिकॉज अगर आप क्वांटिटी नहीं सोचेंगे तो क्या पूरा दुकान ले लेंगे, नहीं लेंगे। दैट मीन्स यू आर टेकिंग डिसीजन ओवर देयर फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव, एंड वंस यू फाइनलाइज देन यू कैन पे फॉर दैट प्रोडक्ट एंड अवेल दैट प्रोडक्ट। पैसा देंगे, सामान ले लेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट हमने एक पेन और एक कोई ग्रोसरी आइटम या किसके लिए एग्जांपल लिया। यू कैन थिंक व्हाई आई सजेस्ट यू, बिकॉज यही प्रोसेस इंटायर कंप्यूटर में नंबर ऑफ टाइम्स होते रहता है। ये जो हम लोग बात किए, क्योंकि ये 24 आवर्स आपके साथ हो रहा है, तो अब ये 24 आवर्स आपके साथ हो रहा है, वही चीज आप कंप्यूटर के साथ करने जा रहे हैं। तो हम लोग को जो करने जा रहे हैं वो चीज समझ में ज्यादा बेहतर आएगा जो हम रियल लाइफ में ऑलरेडी कर रहे हैं। यानी 24 आवर्स में हम फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट कर, फेच का काम अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। तो आपका जैसे ही कोई प्रोग्राम आप रिक्वेस्ट देते हैं तो वो कहाँ से कहाँ जाता है, वो न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में चला जाता है। अब ये रेडी स्टेट, न्यू स्टेट क्या है, रेडी स्टेट इज द प्राइमरी मेमोरी। यानी फेच होने के बाद पहले डेटा कहाँ जाता है, प्राइमरी मेमोरी। उसके बाद ये डेटा रेडी स्टेट से कहाँ जाता है, रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट इज द सीपीयू, ठीक है ना, जहां पर प्रोसेस एग्जीक्यूट रन होता है। लेकिन एग्जीक्यूट होने से पहले वहां भी डिसीजन बनाना पड़ता है कि इस प्रोसेस का में कैलकुलेशन वर्क है या फाइल हैंडलिंग जॉब है। जैसे अगर कोई फाइल पर आप लिख रहे हैं, कोई फाइल ओपन किया, उसमें डॉक्यूमेंट फाइल है, उसमें लिख रहे हैं, उसमें तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो वो आपका रजिस्टर्स उसका एड्रेस को होल्ड करेगा, और डेटा जो आप अपडेट कर रहे हैं उसके लिए कोई रजिस्टर होगा जो डेटा को होल्ड करके रखेगा जब तक कि फाइल आपका ओपन है। लेकिन जो आपका जो डेटा इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू में गया, उसको हो सकता है कोई अदर रिसोर्स, जैसे आप फाइल की काम कर रहे हैं, उस फाइल को आप प्रिंट करना है आपको, और प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, प्रिंट कमांड दे दिए, प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो प्रिंट नहीं हो पाएगा। तो प्रिंट नहीं हो पाएगा तो उस दौरान आप उस प्रोसेस के चलते दूसरे प्रोसेस को रोक नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे, जिसको प्रिंट निकालना है जिस फाइल को, उसको हम वेटिंग स्टेट में भेज देते हैं। वेटिंग स्टेट इज ऑल्सो अ मेमोरी एरिया where your process is allocated
for time being. Why it is allocated for time being? Due to certain input output event waiting. तो certain procedure, certain peripherals का वो वेट कर रहा है, इसलिए वेटिंग स्टेट में उसको भेज देते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर फाइल, हर एप्लीकेशन, हर तरह के इंस्ट्रक्शंस को कोई रिसोर्स का जरूरत हो और उसको वेटिंग स्टेट में जाना पड़े। तो वेटिंग स्टेट इज द ऑप्शनल। वेटिंग स्टेट में वही प्रोसेस जाएगा जिस प्रोसेस को किसी तरह का इनएडिक्वेसी यानी इनकम्प्लीटनेस टुवर्ड्स हार्डवेयर रिसोर्सेस होगा। अगर कोई हार्डवेयर रिसोर्सेस का रिक्वायरमेंट नहीं है तो डायरेक्टली वो कहां जाएगा? यहां से यहां नहीं जाकर यहां से डायरेक्ट टर्मिनेशन स्टेट में जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रोसेस वेटिंग स्टेट में चला गया तो उसको फिर रेडी स्टेट में जाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो रेडी स्टेट में जाएगा, फिर रनिंग स्टेट में जाएगा। हम लोग जो सीपीयू डिस्कस कर रहे हैं, वी डिस्कस द रनिंग स्टेट। क्लियर है ना? सीपीयू जो हम लोग आर्किटेक्चर जो डिस्कस करेंगे, वी डिस्कस अबाउट द माइक्रो प्रोसेसर, वी डिस्कस अबाउट द सीपीयू। तो सीपीयू इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड ये जो देखिए न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, वेटिंग स्टेट, टर्मिनेशन, बीच में है रनिंग स्टेट, यानी दो ऊपर दो नीचे, बीच में है। आउट ऑफ 5 प्रोसेस स्टेट, योर रनिंग स्टेट इज इन बिटवीन न्यू एंड रेडी एज वेल एज वेटिंग एंड टर्मिनेशन स्टेट। तो रनिंग स्टेट इज द पार्ट ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें रनिंग स्टेट प्रोसेस जो है वो रनिंग स्टेट में होगा और वो प्रोसेस आपका रनिंग स्टेट में एग्जीक्यूशन के फेज में होगा। तो सीपीयू को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू में आपका आ जाएगा कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रजिस्टर्स। अब क्या है कि एएलयू केवल इंटीग्रल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एएलयू अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। तो इसके लिए एडिशनल मैथ को प्रोसेसर भी यूज करना पड़ता है और वो एडिशनल मैथ को प्रोसेसर को हम लोग बोलते हैं एफपीयू, जिसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। जैसे आपका कोई लोगरिथमिक एक्सप्रेशन है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन है, उसको एएलयू परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि उसमें डेसिमल, फ्लोटिंग का मतलब जिसमें डेसिमल हो 2.5, 3.5, वो केवल इंटीग्रल ऑपरेशन परफॉर्म करता है एएलयू, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। अब यहाँ जो हम लोग अभी बात किए, यहाँ पर ये जो सीयू है क्या है? ये आपका डिकोडिंग का काम करता है, ठीक है ना? हम लोग जो फेच और डिकोड बोले तो ये आपका डिकोडिंग का काम करता है। प्राइमरी मेमोरी जो है ये आपका क्या करता है? ये फेच का काम करता है, यानी फेचिंग इज अकम्प्लिश्ड बाय द प्राइमरी मेमोरी, डिकोडिंग इज अकम्प्लिश्ड बाय द सीयू। एंड अब ये सब जो पार्ट जितना देख रहे हैं आप, एएलयू, रजिस्टर्स, मैथ को प्रोसेसर, दीज आर द कंपोनेंट, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन। इज क्लियर? तो फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट जो रियल लाइफ में हम लोग कर रहे हैं वो चीज हमारे कंप्यूटर में कैसे होगा? तो फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, कोई ऑब्जेक्ट को लेकर अगर हम फेच करना, फेच का मतलब कि सपोज इफ यू हैव टू फेच एनीथिंग, सपोज अगर आपको कुछ फेच करना है, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लोग सपोज जो गूगल है, यहाँ पर कोई भी टॉपिक लिखते हैं, ठीक है? जैसे कंप्यूटर या हिंदी मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, ठीक है? हिंदी मीनिंग ऑफ कंप्यूटर। अब ये जैसे ही हमने वहां पर क्लिक किया तो वो क्या हुआ? फेच इनिशिएट हुआ, फेचिंग। अब आप फेच करने के बाद एक आपके पास ऑप्शन आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यही एक ऑप्शन है। इसमें देखिएगा नंबर ऑफ पेजेस है। हमने पहला पेज अभी ओपन किया हुआ है, 10 और मोर देन 10 आगे भी पेजेस होगा। लेकिन इफ यू विल गेट द सॉल्यूशन इन द फर्स्ट पेज, यू डोंट गो फॉर द सेकंड, थर्ड और रेस्ट ऑफ द पेजेस। तो जैसे ही आपने यहाँ लिखा हिंदी मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, इसका मतलब है यू आर इन सर्च ऑफ द हिंदी मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। So that is the searching, initiation of the searching. When you type the text and press on the search button, जो आप ये जो अभी हम लोग सर्च किए क्या, दिस इज द सर्च बटन, ठीक है? तो ये जैसे ही सर्च बटन को क्लिक कर रहे हैं तो ये सर्च करके ये हमारा रिजल्ट दे रहा है। रिजल्ट दे रहा है का मतलब सेकंड स्टेप इनिशिएट हो गया। सेकंड स्टेप क्या है? डिकोड। अब यहाँ पर मोर देन 10 पेजेस इज देयर। तो मोर देन 10 पेजेस में यू वांट टू सर्च विच वन इज एप्रोप्रिएट फॉर योर आंसर, यानी आपके आंसर के लिए कौन सा अप्रोप्रिएट है।
तो आउट ऑफ सेवरल पेजेस, इफ यू विल गेट द आंसर इन द फर्स्ट पेज, यू डोंट गो फॉर द सेकंड, थर्ड और रेस्ट ऑफ द पेजेस. दैट मीन्स कि संगणक एक वर्ड मिल गया हिंदी में, आप इससे सेटिस्फाई, संतुष्ट हो गए. तो दैट मीन्स व्हाट, कि ड्यूरिंग डिकोडिंग यू आर एनालाइजिंग द ऑप्शन और अल्टरनेटिव प्रोवाइडेड बाय दिस सर्च इंजन. तो आपके पास 10 पेज का ऑप्शन दे दिया. अब उस 10 पेज में आपको तय करना है कि किसको आप एग्जीक्यूट करेंगे, यानी किसको फाइनली आंसर में आप होल्ड करेंगे. तो आपने संगणक को होल्ड कर लिया, यानी कि आपने डिसीजन भी ले लिया, आपको मीनिंग मिल गया. जो ऑब्जेक्टिव था कि हिंदी मीनिंग ऑफ कंप्यूटर आपको मिल गया. इसका मतलब है फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, ऑल द 3 ऑपरेशन इज डन. So whenever you are using search engine, number of times you are doing the same, fetch, decode and execute, because each time you will get several link. Out of several link, you just go for the particular link which will satisfy more you. आपको जो ज्यादा satisfy करेगा, आप उसको link को finalize कर देंगे. Actually जब आगे आप पढ़ेंगे, जब आप आगे पढ़ेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे SEO, ठीक है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है. अब ये एसईओ जो होता है, इसके बेसिस पर जिस साइट का ज्यादा हिट, ज्यादा लोग उसको देखें, हर हिट में वो पहले नंबर पाए, तो एसईओ किया जाता है. तो वो दैट इज द टेक्निक, और उसका एक अलग कोर्स है एसईओ का. ठीक है, कंप्लीट. वो जो बीसीए, बीएससी, आईटी स्पेशलाइज होते हैं वो लोग करते हैं. ठीक है ना, स्पेशलाइजेशन ऑफ एसईओ, स्पेशलाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर. तो अब यहाँ पर देखिए, प्रोसेस को हमने कोरिलेट किया सीपीयू से. तो आज हम लोग 2-3 पॉइंट हम लोग क्लियर किए. पहला चीज कि फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट क्या होता है रियल लाइफ में, और हम लोग आर्किटेक्चर जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें ये काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन पूरा करता है. तो फेच का रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि आपको कंपोनेंट के बेसिस पर समझना है. तो प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग मेमोरी. तो प्राइमरी मेमोरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेचिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन. Your CPU is responsible. CPU का हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोनेंट. तो CU of the CPU, कंट्रोल यूनिट पार्ट ऑफ द CPU is responsible for decoding. अब डिकोडिंग का मतलब क्या होता है ये भी हम लोग समझ लिए. डिकोडिंग का मतलब टू टेक डिसीजन, यानी किसी भी तरह का डिसीजन बनाना. एग्जीक्यूशन का मतलब टू फाइनलाइज आउटपुट या आउटकम, और इसका मतलब फेच का मतलब टू सर्च एनीथिंग. तो आपका जो प्राइमरी मेमोरी, अगर वर्ड आप क्लिक करेंगे तो आपका प्राइमरी मेमोरी को कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल यूनिट जनरेट करेगा, और प्राइमरी मेमोरी सर्च करेगा क्या MS ऑफिस का MS वर्ड प्रोग्राम आपके हार्ड डिस्क में इंस्टॉल है. तो जैसे ही सर्च किया तो वो प्रोग्राम है तो उसका क्या हो जाएगा, प्रोसेस. यानी कि whenever your program is going to be opened, then it become process. यानी running program is process. इसको भी हम लोग ऐसे समझ लेते हैं रियल लाइफ में कि you have a schedule, routine for the class. That routine and schedule is the program. But whenever you allocate inside the classroom according to that schedule or routine, then you are in process. यानी your schedule now become process. आपका schedule के हिसाब से जब क्लास चलने लगा, it become process. जब तक schedule और routine में था, that is the program. आपका एग्जामिनेशन का schedule आ गया. अब वो शेड्यूल के बेसिस पर जिस दिन एग्जाम होना है उस दिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गए और 3 आवर्स एग्जामिनेशन फेस किया, दैट इज द प्रोसेस. यानी यू कैन से कि योर प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज ऑलवेज प्रोसेस. अगर कोई MS वर्ड आपने इंस्टॉल करके MS ऑफिस रखा है तो दैट इज प्रोग्राम. बट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू एक्सेस MS वर्ड ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज ऑफ दैट MS ऑफिस, देन इट बिकम प्रोसेस. यानी एवरी रनिंग प्रोग्राम इज द प्रोसेस and stored program is the program itself. Yani ki for execution of process, for generation of process, we need a program also. Without program we cannot generate the process, because wahi process banega jo program available hoga. So first of all we install the program, permanently resided inside the hard disk or SSD, and then after time to time as per our requirement we pass the request to the computer to open that particular program. And whenever the request is fulfilled by the computer, that program become process, because the process is the program in execution. तो आपके सिस्टम में बहुत सारा प्रोग्राम होगा, लेकिन जिसका रिक्वेस्ट आप देंगे वो रिक्वेस्ट आपका फुलफिल करके प्राइमरी मेमोरी फेच करेगा और डिकोड का काम CU करेगा, और फिर डिकोडिंग फाइनलाइज होने के बाद एग्जीक्यूशन प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा.
एग्जीक्यूशन का मतलब नहीं हुआ तुरंत आउटकम। आप फाइल पर लिख रहे हैं तो जब तक आप फाइल पर लिखेंगे तब तक एग्जीक्यूशन प्रोसेस जारी रहेगा। जैसे आपका क्लास का जो जो आवर होगा उतने आवर तक आप क्लास करेंगे, जैसे ही क्लास का आवर खत्म होगा आप क्लास क्लोज हुआ, यानी कि फिर से आप रिसाइड हो जाएंगे जहां से आप आए थे। घर से भी समझिए, घर से आप चले यहाँ के लिए तो वहां से आप रिसाइड हुए, फिर कहाँ जाएंगे, वो घर पर जाएंगे। यानी कि आपका जो फाइल ओपन हुआ है वो रीलोकेट हुआ, क्लोज होने पर फिर वही जाएगा जहां से वो रीलोकेट हुआ था। दैट इज द पर्टिकुलर। So from next class, because 2 days is the introduction session, so we just I think that you just have some introduction part what you have to discuss। आपको जो पढ़ना है कुछ समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में हम लोग क्या पढ़ना है। अगर ये बेस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा फिर थ्योरेटिकल जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो चीज आपको ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा से अपने खुद से एलैबोरेट करिएगा। जो हम डिस्कस भी करेंगे या लिखाएंगे भी वो आप अगर खुद अपने लैंग्वेज में लिखिएगा तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा एलेबरेशन कैपेबिलिटी आना चाहिए, उसके लिए इसके इंटरनल कंपोनेंट को समझना जरूरी था। एंड आई थिंक दैट कि फेच डिकोड एग्जीक्यूट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब हम लोग सीपीयू और उसके कंपोनेंट को पढ़ेंगे बार बार यूज करेंगे तो और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। 15 कोई है क्या ऑनलाइन जुड़े हैं क्या? 15 हैं हमको छोड़कर।